Good morning students. In previous lecture we learnt about electric field due to a point charge and electric field due to system of charges. But what will be the electric field if charge is distributed along a line or along a surface or along a volume? So our today's topic is electric field due to continuous charge distribution. So in this topic we will learn about what will be the electric field when charge is distributed along a line, along a surface or along a volume. First one is linear charge distribution. Linear charge distribution means in this we will find the electric field when charge is distributed along a line. Suppose charge is distributed along a line. Distributed along a line having length L. Charge Q is a positive charge, so the direction of electric field will be opposite to the charge. As in previous lecture we learnt about what will be the direction of electric field if charge is positive. If charge is positive, then electric field readily outward or away from the charge. So direction of electric field will be away from the charge. Now we have to find the electric field. As in previous lecture we learnt about electric field due to a point charge, a single point charge. Here charge is distributed along a line, a length L. So what we will do, we will consider a small portion from this line. Let it be delta L. We will consider a small portion. Now it will act as a point charge in length L. Let dl be small portion of line charge. When charge is distributed along this line length L, then what will be the linear charge density? जैसा कि हम डेंसिटी पढ़ते हैं, अगर किसी भी चीज़ के लिए हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं? द फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ अब यहाँ पे क्या है, लेंथ है वॉल्यूम की जगह पे, लेंथ पे, और मास क्या है, यहाँ पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. देन व्हाट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बिकम इन मास. मास किस चीज़ का है? चार्ज का. लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे क्या है? लेंथ. तो पूरे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगी? Q अपॉन L. अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब हमें जो फाइंड करना है, अभी तक हमने प्रीवियस केसेस में सारा फाइंड कर रखा है पॉइंट चार्ज के लिए. नाउ वी विल कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन dl फ्रॉम दिस लाइन लेंथ L. dl पोर्शन कंसीडर कर लिया, स्मॉल पोर्शन, और उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा वो भी क्या बन जाएगा? DE. इस स्मॉल पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? DE. Now on dl portion we will consider a dq. Small dq charge is distributed on length dl. Then if dq be the small charge on length dl, then what will be the linear charge density? In that case it will become dq upon dl, charge per unit length. Thus at point P, what will be the electric field due to this small positive charge? As we know for small positive charge electric field, point charge के लिए हमने निकाल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. और यहाँ पे हमने जो लेंथ ली है इसके लिए, स्मॉल पोर्शन के लिए, DQ अपॉन DL, और जो DQ है उसके लिए लेंथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं? एट पॉइंट P तक हमने उस लेंथ को कंसीडर करना है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तक x. देन वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस स्मॉल चार्ज dq. दिस विल बिकम DE. इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं इसलिए मैंने E को DE के साथ डिनोट किया है. इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज अब यहाँ पे Q की जगह क्या रख रहे हैं हम? DQ.
और यहाँ पे डिस्टेंस जो r से, r की जगह से डिस्टेंस क्या हुआ है, चार्ज से लेके पॉइंट P तक का x, तो मैं इसको x स्क्वायर में लिख रही हूँ। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू है क्या यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। तो हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 we can find the value of dq which is equal to lambda into dl, dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, lambda into dl। now I will put this value in equation number 2, de is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dl upon x square। this is the electric field for the स्मॉल पोर्शन व्हेन वी कंसीडर अ लार्ज लेंथ, एक बड़ी लेंथ में से मैंने एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर किया और छोटे से पॉइंट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब ऐसे ही मैं छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करती जाऊंगी, इसमें से एक सेकंड पोर्शन ले लो इसको डी क्यू, देन वी विल कंसीडर अ थर्ड पोर्शन डी क्यू, फिर वहाँ से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ को एक्स कंसीडर कर लो, फिर से छोटा पोर्शन ले लो, स्मॉल स्मॉल पोर्शन करके मैं सारी पूरी लेंथ का क्या फाइंड कर सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम स्मॉल स्मॉल पोर्शन के लिए फाइंड कर लेंगे तो जब हम उनको पूरा ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पूरी लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाता है। सो फॉर होल लेंथ के लिए जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लास्ट में मैं ये बोल सकती हूँ बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि उसमें हम सारी टर्म्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, एक स्मॉल पोर्शन के लिए निकाल लिया, ऐसे ही तुम छोटे छोटे पोर्शन फाइंड आउट करके सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, देन दिस इक्वेशन विल बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड सम बन जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught सम ऑफ टोटल लेंथ, ऑल जितने टोटल लेंथ डी एल को कंसीडर करूंगी दैट विल बिकम लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। टोटल लेंथ को कंसीडर कर लूँ, सबको ऐड अप कर दूंगी तो वी कैन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Now second one is surface charge distribution, when charge is distributed along a surface, तब हम कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से हमने क्या करना है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर अ सरफेस, लेट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, देन एज वी नो, जैसे हमने कंसीडर किया लीनियर चार्ज डेंसिटी को, वैसे ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा के साथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने डिनोट किया लैम्डा के साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा विच विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइड ओवर सरफेस। अब हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, लेट वी विल कंसीडर अ डी एस स्मॉल सरफेस फ्रॉम दिस सरफेस, छोटा सा सरफेस एक कंसीडर कर लिया। इफ सिग्मा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन व्हाट विल बी दी सिग्मा फॉर दिस केस, डी एस के ऊपर चार्ज भी क्या हो जाएगा, डी क्यू, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये ऐसे ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज एट पॉइंट P तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फाइंड करना है। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्मॉल पोर्शन टू पॉइंट P इट विल बी इक्वल टू x, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस स्मॉल पोर्शन विल बिकम सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, और यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। Now what will be the electric field due to this small portion। देखो सिमिलरली हमने जैसे लीनियर चार्ज में किया है वैसे इसमें भी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड DE बन जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught DQ upon x square। Now DQ is sigma ds 1 upon 4 pi epsilon naught sigma ds upon x square,
और 1/, और हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर से हम बोल देंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं क्या करूँगी, अब मैंने इतने के लिए निकाल लिया, फिर मैं छोटा पोर्शन एक और ले लूँ, फिर से एक छोटा पोर्शन ले लूँ ds, फिर से इसको छोटे पोर्शन में कंसीडर कर दूँ। वी विल टेक स्मॉल पोर्शन फ्रॉम दिस लार्जर सरफेस, देन वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस स्मॉल पोर्शन, एंड देन वी विल add these all portion, we will get the net electric field due to surface charge distribution। देखो अगर मैं स्मॉल पोर्शन ले रही हूँ तो वो एक्ट कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की तरह, और इस पॉइंट चार्ज पे मैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकती हूँ, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 q/x²। स्मॉल पोर्शन के लिए मैंने d साथ में लिख रखा है, dE dq, और फिर उसमें मैंने dq के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया। देन जब हम स्मॉल पोर्शंस को ऐड कर देंगे, देन अकॉर्डिंग सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी विल ऐड दीज टर्म्स एंड सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 सम ऑफ ऑल डेल्टा एस, सम ऑफ ऑल डी एस लिख सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल डी एस सिग्मा डी एस अपॉन r²। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Similarly, we can find volume charge distribution. How to find electric field when charge is distributed along a volume? अगर एक वॉल्यूम के ऊपर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा, और वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल कोई भी शेप ले लूँ मैं, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, हाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड? फिर से हमने वैसे ही कंसीडर करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और मैंने उसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लेना है, दैट इज dv, और dv के ऊपर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, दैट इज dq, और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज एट पॉइंट p, इसका डिस्टेंस जो है वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, x। देन इलेक्ट्रिक, जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिमिलर हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने डिनोट किया लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे रो के साथ, रो, दिस इज द साइन ऑफ रो। देन रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, स्मॉल पोर्शन पे ले रखा है मैंने dv पे, देन रो को हम क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dv। सिमिलर केस बन जाएगा, और dq की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ, रो इंटू dv। देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल पोर्शन के लिए क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/x²। अब यहाँ पे E क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, DE फाइंड करना है मुझे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, DE इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन x², वेयर dq इज रो dv, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी मैं 1/4πε0 रो dv अपॉन x²। टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं, फिर से मैं एक स्मॉल पोर्शन ले लूँगी, स्मॉल पोर्शन लेके मैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगी। देन वी कैन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वी कैन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन which will be equal to 1/4πε0 sum of all dv and then rho dv upon x². This is the electric field due to continuous charge distribution, जिसमें हमने क्या करना है, हर एक, अगर पूरे कितना बड़ा भी कोई सरफेस है, चाहे वॉल्यूम है, उसमें से मैंने छोटा सा एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है जो कि एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की तरह, और उसका एक फॉर्मूला लगा के हमने सारे का सम ले लेना है, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी वॉल्यूम के लिए।